Hello, guys, and welcome back to the final episode of Anything Else. Before I introduce today's guest, I want to thank you all for showing all the support you have given to this podcast. It was a small idea I had in the lockdown when it started, and I didn't want to rush the idea, so I started slow, and it turned out to be a great thing. And yeah, it's a sad thing that this is the final episode, and but don't worry, I'll bring back another season with some more exciting guests and insights for you guys very soon. So stay tuned for that. Right now, thank you so much again for all the support, and I can't be more grateful for you guys being the perfect audience for this podcast. So, one last time for this season, let me introduce to you today's guest. It is Hitesh Patel. So, I know Hitesh from 11th standard. We were in the same junior college and classes. He started off not having that much interest in photography to developing his skills with determination and dedication throughout the years. He has grown immensely in this field. In fact, his level of dedication is so much that I am really impressed that he's working on a particular project right now, which will you get to know in the podcast. So listen it to the end. Plus, there's a small unfortunate news that we weren't able to record a video for this podcast on Zoom because we both were facing network issues and it was really hard for us to reschedule because he had his exams. So this podcast is the first one, which is an audio only podcast. It doesn't matter. It's a really great hour-long podcast, and we'll enjoy every minute of it. So make sure you follow him on Instagram. The links will be in the description below, and let's go. Hold up. Okay. Hello, guys. My name is Hitesh Patel, and I am a photographer from Bombay. I am into third year engineering as well. I am pursuing my mechanical engineering from Amity University, Mumbai, and I am here with Aditya at the seventh episode of Anything Else. Okay, so guys, थोड़ा backstory देता हूँ तुम लोग को. I know Hitesh from like 11th standard, I guess. We were in the same class, same junior college, and yeah. Also IIT, as I mentioned, we used to do. But yeah, I know him from back then. Man, We wasted a lot of money those before were engineering, really good guys. times. Okay, Yep, so exactly. he's someone who have grown tenfolds in this field, and you might not be active right now on your field, but you know there is a lot of work which is going on and behind the scenes. So I'll start with Project Yeah. Unbound. So can you tell something about it? So Project Unbound was something which was like an idea. Okay. It took me almost 1 year to formulate it. So I'll tell you something about it. It started back in January. Sorry, it started back in the days of like January or December last year when I was, invited to NMIMS Kharghar to host a particular workshop. That workshop was on content creation. So that content creation workshop, it was called as Bokeh, and I was supposed to, present the necessity of how talent and creativity can help you, achieve things that cannot be possible, and to make students understand they're in content creation whenever it comes to photography or digital art or something like that. So what happened was my initially my friend was invited, and I also like sort of went in there as his companion. So, when I went there to deliver the particular workshop, what I noticed was that many people actually were not aware of even the basic things that were like, that form the fundamentals of content creation. Be it, utilizing the gear to the fullest, be it like, optimizing a particular provided gear to you, and even a lot of people were not aware with the fundamentals of photography also. So what I thought was like, if these type of people, like for example the beginners, they are not aware of the gear, and they are not aware of how what fundamentals to master in photography. So why not we should like pave a way for them to uh, create something or something like that, because everybody needs a helping hand when they start.
So Project Unbound is my take on providing around things that is like artistic things and many more like things that are directed towards particular hobbies. For example, like yeah, yes, like a platform where students can learn particular things. That is mostly like extracurricular activities, because in India you know the case. हमारे देश में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा रिस्पेक्ट वगैरह नहीं दी जाती, एंड पीपल आर लाइक वेन एवर डज नॉट मैटर आप लोग कितना आगे जा रहे हो कंटेंट क्रिएशन में हो गया, आपका कोडिंग वगैरह कितना अच्छा हो जाए लोगों को फर्क नहीं पड़ता, आपके स्पोर्ट्स वगैरह एथलेटिक स्किल्स कितने अच्छे हो जाए लोगों को फर्क नहीं पड़ता. दे जस्ट आर लाइक इंक्लाइन टू अ पर्टिकुलर नॉर्म, दैट इज लाइक वो 9 to 5 जॉब हो गया, आप डिग्री ले लो, ये सब हो गया. सो दैट इज माई टेक ऑन like to make people understand that yes, there are other also things that we can like try. So this is Project Unbound. Initially it was like yes. Can I say this is like a dream project of you? ड्रीम प्रोजेक्ट यस, हम ड्रीम प्रोजेक्ट तो है ही यार, क्योंकि लाइक मैंने इनिशियली दिसंबर 2019 से मैं आइडियाज फॉर्मुलेट करते आ रहा हूँ. एंड इनिशियली इट स्टार्टेड लाइक जस्ट कि मैंने सोचा था कि हाँ आई विल जस्ट लाइक एक नॉर्मल वर्कशॉप वगैरह रखते जाऊंगा एंड लोग अटेंड करेंगे. बट एज लॉन्ग एज लाइक एज यू स्टार्ट वर्किंग, अंटिल एंड अनलेस आप कोई चीज पे काम करना स्टार्ट नहीं करते हो, आप लोगों को पता नहीं चलता कि उसमें क्या डिफिकल्टीज आने वाली है. उसके बाद में आप लोगों को ये पता नहीं होता कि लोग उसको कैसे एक्सेप्ट करने वाले. तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे हर्डल्स हैं जो मुझे अभी पास करने बाकी है. इनिशियली ये आइडिया मैंने अपने पास में ही रखा हुआ है, बिकॉज लाइक अभी तो तुझे पता है लॉकडाउन वगैरह है, तो स्कूल्स आर नॉट स्टार्टिंग एनी टाइम सून. तो हम लोगों को लाइक इतना प्लानिंग तो है कि लाइक वी हैव टू फॉर्मुलेट द आइडिया एज मच एज पॉसिबल एंड मेक इट बेटर एंड बेटर. उसके बाद में हम लोग प्रेजेंट करना स्टार्ट करेंगे. Okay, so for your passion, this passion in photography, does your parents support this or they are worried about your future, something like that? मैन फ्यूचर वगैरह का और पेरेंट्स की तो बात ही मत करो. फ्यूचर वगैरह और पेरेंट्स का तो मतलब अभी जैसे आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ, ऐसा पीछे का थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ मैं कि लाइक हाउ आई गॉट इनटू फोटोग्राफी. So I was in Dehradun, and there was a very good friend of mine. His name was Asif Ali. So he had a Canon 1300D back then. And उससे भी पहले you know our story. Okay, we used to like go on friendly shoots and as well. So yeah, so that was the case. वहां से मुझे थोड़ा थोड़ा पता चला कि यार DSLR वगैरह ऐसा होता है. एटलीस्ट मुझे पता चला कि हाँ भाई DSLR ऐसे होता है. एंड यू रिमेम्बर मैं बैक इन डेज मतलब 2017 और 12 तुझे पता था लिटरली गाइस, आदित्य ने मुझे DSLR चालू करके दिया था, उसमें बटन वगैरह उस था, एंड इतना बस समझाने के बाद में भी आई वाज नॉट एबल टू क्लिक दैट पर्टिकुलर शॉट. सो यू कैन इमेजिन द लेवल कि मैं कहाँ पे था. This was way back in when we were, I guess, 2016. I guess we were in 11th standard, and we met at 2016, 2017. We met at this one, I guess, get together in Fadke Road. I guess we went at Fadke Road, and then I brought my camera that time, and it was like, okay, he asked me, and I was like, oh, this is the camera. And at first time, I know my first time I got my camera, I was like, okay, why are there so many buttons? There should be one button. But yeah, you start with one single step. You should start with one step and then you move forward. So again, exactly. And exactly. So पेरेंट्स वगैरह का तो यार मतलब बहुत ऐसा कुछ ऐसा मेड अप स्टोरी वगैरह तो नहीं है. बैक इन द डेज व्हेन आई वाज इन देहरादून, मुझे फोटोग्राफी वगैरह के बारे में आसिफ ने जैसे ही मतलब कैमरा वगैरह के बारे में बताया, तो आई इमीडिएटली गॉट हुक्ड. उससे पहले भी आई हैड लाइक पसंद थी मेरी कुछ ना कुछ अलग अलग चीजों में. क्रिकेट वगैरह था, आई लव प्लेइंग क्रिकेट वगैरह, बट सम और दी अदर रीजन की वजह से ना मे बी बिकॉज आई वाज विद माय ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह, तो दैट वाज लाइक ओल्ड फैशन चीजें होती थी वहाँ पे, मानते नहीं थे लोग. तो यहाँ पे आके फोटोग्राफी वगैरह पसंद किया. मम्मी को भी मतलब मैंने मम्मी को कन्विंस किया था, थोड़ा मैनिपुलेट किया था कि मम्मी हम लोग एक क्लब वगैरह में है, फोटोग्राफी क्लब में है, एंड हम लोगों को शूटिंग वगैरह के लिए लगता है कैमरा वगैरह. एंड एक्चुअली पीपल आर एक्चुअली वेरी हैप्पी व्हेन दे गेट अ पर्टिकुलर डिवाइस और समथिंग लाइक दैट, गैजेट वगैरह आपके घर में आता है तो आप ऑब्वियसली हैप्पी होते हैं.
my mom actually she broke her fixed deposit and she got me the camera. So लोगों को हंसी आती है. I was like people actually feel happy, but at the time I felt very sad because मेरे मम्मी ने एक बड़ा पार्ट उनके इन्वेस्टमेंट का किसी चीज में डाला था. तो आई ऑब्वियसली हैड द रिस्क कि मैं इसमें से कुछ निकाल पाऊंगा या नहीं निकाल पाऊंगा. बट होपफुली जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करते गया आई got to get into the rhythm and फिर अभी चल रहा है जो भी चल रहा है वैसे. So yeah, So, kind of thankful for what is happening right now. Lot of exciting things coming on. so for your plans in the future, are you going to pursue photography as a full-time thing, or are you going to pursue it as a passion? तो बेसिकली अभी फोटोग्राफी वगैरह तो सी मेरे कुछ आइडियाज हैं जो कि मुझे इनकलकुलेट करनी है. एंड उसके लिए मुझे फोटोग्राफी फुल टाइम परस्यू नहीं करना. बिकॉज व्हाट आई हैव सीन इज लाइक अभी जो कंटेंट क्रिएशन का जो सिनेरियो चल रहा है दैट इज एंटायरली. सबसे पहली चीज तो वो आपके कंटेंट पे भी है. सेकंड थिंग इज वो आपके नंबर्स देख रहे हैं कि लाइक व्हाट अमाउंट ऑफ फॉलोअर्स हैव वी गॉट. उसके बाद में आप लोगों का डेडिकेशन वो लोग चेक कर रहे हैं. आप लोग कितना इनोवेटिवली और कितना क्रिएटिवली टैलेंट वगैरह को एग्जीक्यूट कर रहे हो, एक शॉट को एग्जीक्यूट कर रहे हो और ला रहे हो सामने, वो भी वो लोग देख रहे हैं. सो मेरे हिसाब से ऑनेस्टली सेइंग आई एम काइंड ऑफ अ लेजी शूटर. उसके बाद में आई काइंड ऑफ लाइक व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिव शॉट देयर इज समथिंग दैट आई लाइक. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं फुल टाइम इसके लिए भी नहीं कर सकता बिकॉज कंटेंट क्रिएशन का जो स्पेस होता है दैट इज अ वेरी रिस्की वन. दैट इज अ वेरी रिस्की वन. आप लोग अगर चल रहे हो तो यू आर एब्सोल्युटली लाइक ब्लोइंग अप. आप अगर नहीं चल रहे हो तो दैट इज लाइक नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू द लोएस्ट टाइम. ऑब्वियसली लोग मैनेज कर लेते हैं ये, लेकिन आई पर्टिकुलरली फील कि लाइक मैं जिस स्टेज पे हूँ, जिस स्टेज पे मेरे फैमिली का कंडीशन वगैरह है, I can get into photography full time, ऐसा नहीं हो सकता. So I am like trying to infuse different things into that. जैसे entrepreneurship हो गया, photography हो गया, ये दो तीन चीजें कंबाइन करके पब्लिक स्पीकिंग वगैरह कंबाइन करके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लाइक आई शुड ब्रिंग समथिंग न्यू. तो So, फुल टाइम तो फिलहाल के लिए नहीं. when a person, like, when a particular person realizes that they are good at photography, so how should they introspect themselves, whether to follow this as a full-time career option or just, go around as a passion? अभी ओके. सो इसके लिए ना मैं जितने भी नए कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह आ रहे हैं, जितने भी एस्पायरिंग लोग हैं जो मतलब अभी अभी जस्ट फोटोग्राफी के गेम में घुस रहे हैं, I would like to first of all like put three basic questions in front of them. जैसे मैंने अभी मैं चीजें एग्जामिन कर रहा हूँ. there is like एक इलॉन मस्क पता है. He is like an entrepreneur. Okay, he is the founder of Tesla and SpaceX. So he is like हम लोग सोचते हैं कि why these billionaire entrepreneurs are so sorted वगैरह and how are they so successful in a very short amount of time. ठीक है, like लोग start करते हैं. There are some people who absolutely like make it to the top in like just 5 years और हम लोग सोचते हैं कि भाई 5 साल तो मेरे भी हो गया, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. So they have this constant habit of figuring things out very nicely. तो वो चीजें जब मैंने देखी, मैं लास्ट ईयर से मैं बहुत इवॉल्व हो रहा हूँ. मतलब मैंने जो मतलब सोशल मीडिया वगैरह जो था, सोशल मीडिया के अलावा अभी जैसे सोशल लाइफ तो कुछ बची ही नहीं है लॉकडाउन में. सो एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज लाइक गेटिंग इनटू होम्स एंड जस्ट फिगरिंग आउट थिंग्स दैट वी सॉर्ट ऑफ लेफ्ट इन दिस बिजी सिनेरियो. तो व्हाट हैपेंड वाज जैसे जैसे मैंने सारी चीजें देखनी शुरू की कि व्हाई पीपल आर एक्चुअली सक्सेसफुल एंड व्हाई अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ पब्लिक एक्चुअली मेक्स इट टू द टॉप. तो उसके लिए तीन मेन चीजें ये थी कि लाइक सबसे पहले तो जैसे आदित्य यू सेड कि आफ्टर समवन रियलाइजेस कि दे आर गुड एट समथिंग, तो व्हाट शुड दे डू टू चूज दैट इट बिकम्स अ करियर हॉबी. करियर बनता है या हॉबी बनता है, ये चूज करने के लिए मैं तीन बेसिक पिलर्स यूज करता हूँ. सबसे पहली चीज तो हमें ये फिगर आउट करना चाहिए कि वो आपके लॉन्ग टर्म में फिजिबल है या नहीं है. सेकेंड थिंग इज वो आपको कैपिटल जनरेट करके दे रहा है या नहीं दे रहा है, हम लोगों को वो देखना है. एंड द थर्ड इज आपको कितने देर तक पसंद है ये चीज करना.
आपको कितने देर तक ये चीज आप मेंटेन कर सकते हो, आपका जो पर्टिकुलर टच है वो चीज में आप कितने देर तक मेंटेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, हम लोग आर्टिस्ट स्पेस में एक चीज बोलते हैं वन हिट वंडर, ठीक है। दे जस्ट पुट आउट अ वेरी गुड सॉन्ग, दैट सॉन्ग एब्सोल्युटली ब्लोज अप, 700 million views, 800 million views, 900 million views, 1 billion views. And फिर the next song it comes, it literally just racks up views in the order of like thousands or 1 lakh views ऐसे। तो यू नो दैट इज कॉल्ड एज वन हिट वंडर। तो समटाइम्स है ना, लोगों को ऐसा लगता है कि लाइक आपका टच वगैरह चला गया ये पर्टिकुलर चीज में से। तो समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट द टच, हम लोगों को कभी कभी है ना मेंटेन करने ही नहीं जमता वो। तो मैं सबसे पहले तो आपको यही बोलूंगा कि आप सबसे पहले कोई भी हॉबी वगैरह आप लोग चूज कर रहे हो तो आप एक पर्टिकुलर चीज चूज कर लो। उसके बाद में आप लोग फिगर आउट करो कि भाई मैं जो ये हॉबी करने वाला हूँ वो मुझे लॉन्ग टर्म में फिजिबल है कि नहीं, उसका स्कोप वगैरह के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये हॉबी में आपका पेरेंटल सपोर्ट वगैरह कुछ है या नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंडिया में जैसी कंडीशन है उस हिसाब से बहुत सारे लोगों को पेरेंटल सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज दे आर लिटरली नथिंग विदाउट द पेरेंट्स, लेट्स बी ऑनेस्ट विद। सेकेंड इज आपको वो कैपिटल कितना जनरेट करके दे रहा है। बहुत सारे लोग मतलब फुल टाइम वगैरह अगर फोटोग्राफी वगैरह, फॉर एग्जांपल अगर फोटोग्राफी का भी ले लेंगे हम लोग, फुल टाइम अगर लोग फोटोग्राफी पे ऊपर जंप भी कर लेंगे तो वो जंप करने के बाद में आपको वो कैपिटल आ रहा है नहीं घर पे, उसके बाद में आपका जिंदगी वगैरह आपकी कैसी क्या चल रही है, यू आर एबल टू अर्न समथिंग आउट ऑफ इट और नॉट, उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड करते हो। अगर इफ यू आर फाइन कि आपके घर पे कैपिटल भी आ रहा है एंड यू आर लविंग व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, तो यू फाइन, यू कैन कीप दैट एज अ हॉबी और समथिंग लाइक दैट। एंड अगर आपका अगर फुल टाइम वगैरह अगर आपको स्विच करना ही है तो आपको ये 3 पिलर तो देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इज लाइक checking whether that particular thing is feasible in the long run, and the third wala thing that is if it's like something that you are loving consistently। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा हो जाता है कि भाई एक बार फोटो निकाला, दूसरी बार फोटो निकाला, तीसरी बार फोटो निकाला, अच्छा आ रहा है फोटो, सपोर्ट वगैरह मिल रहा है चलेगा, लेकिन फिर दे पर्टिकुलरली फिर है ना थोड़े देर के बाद में दे थिंक कि हाँ अभी हम लोगों को जॉनर चेंज करना है, ठीक है। मैं स्ट्रीट फोटोग्राफ लोगों की मेरे को पसंद आती थी तो मैं अभी पोर्ट्रेट्स में जाऊंगा। तो पोर्ट्रेट्स में जाने के बाद में अगर आपको लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो इट यू कम एट अ पॉइंट कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरा ही कंटेंट में मतलब खराबी है, ठीक है, मैं कुछ अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ। समटाइम्स ऐसा नहीं होता, वो पर्सनल चीजें होती है। हर एक को हर एक जॉनर पसंद नहीं आता फोटोग्राफी का। मुझे पर्सनली स्ट्रीट और लैंडस्केप बहुत पसंद आते हैं, पोर्ट्रेट्स वगैरह फैशन पोर्ट्रेट्स इतने पसंद नहीं आते। सी देयर इज लाइक ये ऐसे ही होता है, देयर इज लाइक अ पर्सनल ये होता है, लाइक आपका प्रेफरेंस होता है। तो लोगों के प्रेफरेंस पे मत जाओ, आपको जो पसंद है, अगर आपको पसंद आ रहा है वो करने के लिए, आपको अगर लग रहा है कि यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट, आप ब्लो अप हो सकते हो, तो खुद पे भरोसा रखो, आप लोग ब्लो अप तो हो ही जाओगे। टैलेंट कभी वेस्ट नहीं जाएगा। इतना इतना सारा चीजें मैं अभी कर रहा हूँ, मैं भले ही कॉमर्शियली वगैरह काम नहीं कर रहा, मैं बड़ी से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठा रहा, मैं बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए शूट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव फाउंड माई पर्टिकुलर टच की मेरे को ये जो टैलेंट अभी अक्वायर किया है मैंने, या फिर जितना भी मैंने सीखा हुआ है, चलो टैलेंट वगैरह नहीं बोलते, जितना भी मैंने सीखा है अभी तक वो कहीं ना कहीं मुझे पता चल गया है कि मुझे कहाँ यूज करना है। तो दैट्स द थिंग, आप अगर बिलीव कर रहे हो कि आपने क्या सीखा हुआ है तो आई गेस यू कैन लास्ट लॉन्ग, दैट्स इट। So, guys, Hitesh conducted a photo walk last year in December, where I got to meet a lot of new people. That's where I met Akash, who was in the fifth episode of Anything Else. So you explained there in the end that how having a portfolio in some form ready, if you want someone to hire you for work, is very important. So can you explain why is it that important to the audience, and is there some format to make a portfolio? ओके, सो सबसे पहले तो मैं पोर्टफोलियो का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ कि भाई पोर्टफोलियो क्या होता है। जैसे नाउ मी एंड आदि आर इनटू इंजीनियरिंग, ठीक है, वहां पे हम लोगों का रिज्यूमे चलता है। वी आर लाइक बिजी
gathering a lot of work. हम लोग कॉलेज में छोटे से छोटा काम भी होता है वो भी हम लोग we are down to write it into the resume because somewhere it obviously yes. So somewhere we are down to write it into our resumes because it highlights what we have done. ठीक है, आप लोग अगर इंजीनियरिंग पास कर रहे हो बस पॉइंटर्स वगैरह लेके, ठीक है, तो वो तो हर कोई पास कर रहा है, बराबर। आप साइड बाय क्या काम कर रहे हो, आप क्रिएटिव साइड अपनी क्या दिखा रहे हो, आप कॉलेज में साइड बाय मतलब जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, आप इवेंट्स कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में यू एंड आई बोथ नो कि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड नथिंग एल्स, वो और कुछ नहीं है। तो जो है इंजीनियरिंग में हम लोग रेज्यूमे डालते हैं, तो व्हाट रेज्यूमे डज इज इट रिफ्लेक्ट आवर वर्क। वैसे सेम जब हम लोग आर्टिस्टिक साइड में आते हैं चीजों के, तो देर इज लाइक अ पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज पोर्टफोलियो विच पीपल यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट द वर्क जो भी उन लोगों ने किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे जो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स हैं वो लोगों को एक पर्टिकुलर असाइनमेंट दी जाती है। So what they do is like they make a collection of the particular pictures. They write about the particular pictures वगैरह कि हम लोगों ने assignment यहाँ पे cover की थी, and what they do is they stack it up in a particular layout or something like that, so that when people come to you to ask for any type of work or whether you approach to other people कि हाँ मैं एक street photographer हूँ मुझे एक काम करना है, so that is where portfolio comes into use. आप लोग आपको जब आप लोग मतलब लोगों के पास में काम लेने वगैरह जाओगे तो लोग आपके आईजी फीड तो देखने नहीं वाले, वो हर कोई इंस्टाग्राम पे नहीं होता। तो हम लोगों को क्या करना है कि लाइक वी हैव टू शो देम इन सम और द अदर वे कि हाँ हम लोगों ने ये काम किया हुआ है, तो दैट इज वेयर पोर्टफोलियो कम। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो ये बोलूंगा कि आई विल लाइक गो एज फार एज सेइंग कि आपके आईजी फीड से ज्यादा आप ऑफ द ग्रिड कितना काम कर रहे हो वो मैटर करता है, बिकॉज आईजी फीड इज ऑल अबाउट लुकिंग नाइस। लोगों को हम लोग वही दिखाते हैं विच इज एन एक्सट्रीमली गुड थिंग। हम लोग ज्यादा निगेटिविटी स्प्रेड करना मतलब कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा निगेटिविटी हम लोग स्प्रेड नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए, एंड स्प्रेड करनी भी नहीं चाहिए। कंटेंट क्रिएशन अगर आपको खुश नहीं रख रहा है तो आई डोंट नो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, एटलीस्ट हम लोग क्रिएटर्स के लिए। सो यस, पोर्टफोलियो डेफिनेटली आपके पास में पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू approach a particular person, show them that how you are organized, how you have sorted out things, आपने क्या क्या काम किए हुए बेसिकली पहले, and it also reflects कि हाँ like you are particularly interested in doing what you love, because no one like कोई भी चीज होगी आप लोगों को अगर कोई चीज करनी पसंद आ रही है तो आप लोग कभी उसको मेसी नहीं रखोगे, आप लोग उसको हमेशा एक ऑर्गेनाइज वगैरह फॉर्म में रखोगे, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड योर थिंग्स एंड दे आर कमिंग टू नो कि आप परफेक्ट हो। तो दैट इज द थिंग। एंड पोर्टफोलियो के फॉर्मेट वगैरह तो मैं आई विल बी ऑनेस्ट, पोर्टफोलियो के फॉर्मेट से ज्यादा मैं तो वाकिफ नहीं हूँ, बिकॉज व्हाट आई हैव डन इज लाइक आई हैव मेड माय पोर्टफोलियो ऑन दिस ऐप कॉल्ड एज बिहान। ठीक है, so Behance is a very good app for all the content creators out there. Behance is a very good app. It helps you to organize your portfolio for free. आप लोग वेबसाइट वगैरह बनाने के चक्कर में अभी अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो Behance is a very good way. That's completely free and that is maintained and managed by Adobe. Now we all both know that how well optimized Adobe is. So that is some sort of like a very good option to maintain your portfolio. And if you want to make your portfolio like अगर आपको प्रोफेशनली फुल फ्लो में अगर स्टार्ट करना है, आपको वेबसाइट वगैरह का सारा कुछ मतलब बना के ही आपको स्टार्ट करना है, तो आई वुड सजेस्ट टू like going to website hosting sites like the GoDaddy वगैरह हो गया. Squarespace is also a good option to maintain your portfolio. They have pre-built templates वगैरह होते हैं उनके पास में, but the thing is कि like they are paid and Behance is more convenient to work upon. So yeah. So what That is a Hitesh very is good trying to choice for tell newcomer. is if you're just starting out in photography, it's better to have Behance as a free software so that you're not investing in something which won't give you results in the long run. Agar if it's not working and you have already invested in Squarespace and if it's not giving you results, then you don't just lose your money, you lose your time too. So at least you better try to save one thing
rather than losing both. So let's say if you want to एग्जैक्टली एंड yes, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा. ओके. yes, continue, हाँ, continue. मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा. बहुत सारे लोग. यस यस. मैं और एक चीज ऐड करना चाहूंगा. बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हम लोगों के पास में गियर नहीं है. ठीक है. हम लोगों के पास में वो अवेलेबल टाइम नहीं है जो दूसरे लोगों के पास में है. तो हम लोग ये चीज में आगे कैसे बढ़ेंगे, हम लोगों को क्या करना है, हमें कुछ आइडिया नहीं है. तो यार सबसे पहली चीज तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि लाइक ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट स्टार्ट. ठीक है. थिंग्स विल इवेंचुअली कम ऑन टू योर वे. एंड दूसरी चीज, आप गियर के बारे में कभी मत सोचो. वंस यू स्टार्ट फिडलिंग विथ योर ओन गियर, यू इवेंचुअली गेट द आइडिया कि यू नो हाउ दिस थिंग विल गो अहेड. फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली मैंने ब्रोशर वगैरह मेरे को डिजाइन करना था किसी चीज का. तो मुझे अडोबी, आई एम ऑनेस्टली सेइंग कि मुझे अडोबी इन डिजाइन वगैरह, ये कैप्चर सीसी वगैरह, ये सारे फैंसी फैंसी जितने भी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है, आई डोंट नो अबाउट देम. फोटोशॉप भी मेरे को काफी बेसिक आता है. फोटोशॉप में भी मैं मेरे को, सिंस आई डोंट हैव अ लाइक कैपेबल दैट मच कैपेबल पीसी, में फोटोशॉप भी फुल फ्लेज नहीं चला पाता. तो आई मेड द ब्रोशर्स इन पावर पॉइंट. अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई पावर पॉइंट में लिटरली तो ब्रोशर्स वगैरह आप लोग कैसे बना रहे हो, क्या कर रहे हो. तो यू नो इट ऑल कम्स डाउन टू लाइक फिगरिंग आउट पर्टिकुलर सम थिंग्स. ठीक है. कोर तक जाओ किसी चीज का. अगर आपको किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग उसके कोर तक जाओ. आपको इवेंचुअली सॉल्यूशंस वगैरह अपने आप मिलने स्टार्ट हो जाएंगे. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू कंसिडर. So if लिटरली you 3 साल मैंने यही किया हुआ है. मतलब जैसे जैसे प्रॉब्लम आती गई, आई यूज टू लाइक यू नो work upon certain things. Yes, yes. so if you want to take up a job in this field, uh, if you wanted to do this, how would you approach a client or someone who wanted something done? Um, so first of all, I would like to tell you कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, हम लोगों का पोर्टफोलियो, दैट थिंग मैटर्स द मोस्ट. उसके बाद में यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट. ज्यादा नहीं, बट आप लोगों को अपने खुद के किए हुए काम पे तो कॉन्फिडेंस रखना ही है. इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन योर ओन आर्ट, people will try to misuse you in the best way possible. ये मेरे साथ हुआ है. Yes. I have been misled by many people. For example, जैसे when like you know, if anyone's into commercial space, he will relate it pretty quickly. Your work depends on your amount of your you know salary वगैरह जो भी हो गया, payment हो गया, depends on the value that you put, not about the time. So what happened was I was shooting for a particular 25th anniversary or something like that in Kalyan. I was initially paid like just 1.5k, and the same type of photos, like when we gave that contract to another photographer, people were fine. People were like down to pay him some 8 to 9 thousand or something like that. So that's where you know you are being misused a lot, because you know what happened was like we initially thought that we were just beginners, we cannot do anything in that. इवन इफ और शॉर्ट्स वर गुड, हम लोगों ने सोचा ही नहीं कि हाँ शॉर्ट्स के ऊपर हमें सब कुछ चीजें, लोग शॉर्ट्स वगैरह तुम्हारा काम देख रहे हैं. हम लोगों ने सोचा ही नहीं. हम लोग हमारी स्टेटस को ही डाउट करते बैठे. तो लोगों को इजीली समझ में आ गया. सो व्हाट पीपल वर डूइंग लाइक कि हाँ वैसे भी आप लोग बेसिक हो वगैरह. तो वहां से पीपल स्टार्टेड मिसयूजिंग. देखो, एक एक चीज होती है वो आप लोगों को रिलेट, आप लोग डेली लाइफ में भी रिलेट कर सकते हो. जब भी आप लोगों को लगता है कि यू नो यू आर डूइंग very very less that it expected, people don't try to, there are a very less amount of people who are trying to push you up. Okay. And there are a lot more amount of people who are just trying to you know make you trapped in that particular disbelief of yours, which is not true. आप लोग अगर किसी चीज में सोलली बिलीव कर रहे हो, आप अगर अपने काम में बिलीव कर रहे हो, तो नो डाउट आप लोगों को, अगर आपका काम डिजर्विंग इनफ है, तो it will obviously get the recognition. And if you wanted to approach like a client or something like that, I would be first of all very disciplined with my work. Portfolio वगैरह I would have maintained. ठीक है. Second is like you know the
ट्रांसपेरेंसी दैट नीड्स टू बी देयर इन द बिजनेस साइड. फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग हिडन इसमें ये करते हैं, मतलब लोग बोलते हैं मेरे को 30% मिडल मैन को देना था, 10% इसको देना था. तो दैट शुड नॉट हैपन. हम लोगों को पूरा ट्रांसपेरेंसी वगैरह रखना है. ट्रांसपेरेंसी के बिना आप हमेशा आप लोगों को मिसलीड कर दिया जाएगा. So the main three things I would like to suggest to anyone who is like down to take a job or something like that in this field is get your portfolio done, okay, very nicely. Get your confidence boosted up, very important. And the third is maintain the transparency at the utmost level. And don't be like misled if someone tells you that your work is bad. Take it as a like suggestion. Suggestions are easy to forget. ठीक है, criticism वगैरह जो होता है, criticism is not easy to forget. And if someone is like criticizing you in a bad way, that will like end up eating your head. So सारी चीजें को मैं अभी फिलहाल के लिए तो suggestion ले रहा हूँ. For example, if someone is like suggesting me कि हाँ तेरे को ये करना चाहिए, तो what I do is like मैं उसकी भी बोली हुई चीजें एक बार सोच लेता हूँ, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है. फिर मैं अपने खुद के इस पे सोचने लगता हूँ कि हाँ ये चीजें अगर मैंने मेरे इसमें इनकल्कुलेट की तो कैसे होगा, आउटकम क्या होगा, वो मुझे जम रहा है, वो फिजिबल है कि नहीं है. एंड इफ इट्स नॉट समथिंग व्हाट आई लाइक, आई जस्ट इमीडिएटली स्क्रैप इट आउट. उसको भी कुछ नहीं बोलना, बिकॉज कम ऑन यार, बहुत सारे लोग सच में मतलब सीरियसली सजेशन ही देने आते हैं. Not everyone who is trying to like tell things to is down to criticize you. बहुत सारे लोग मतलब मन से हम लोगों को improve होते हुए देखना चाहते हैं. And a lot of people don't know about that. That is very important. So there's just one thing I have seen a lot of people do, and I've seen you also do, is about taking part in FFAs or edit challenges, which big photographers and content creators, post on their Instagram pages or other social media sites. So why do you think it's important to take part in them, regardless the prize or recognition? Okay, so FFAs के बारे में there is like first thing FFAs के बारे में is like fun fact, I started editing pictures first. rather than like click करने से पहले मैंने ना फोटोज एडिट करना सीखा था. दिस इज अ फैक्ट. जब मैं शुरू किया था फोटोग्राफी तो मेरे पास में कैमरा नहीं था. आई स्टार्टेड विद अ फोन. तब मेरे इतने अच्छे पिक्चर्स नहीं आते थे. बट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज लाइक मैं ना देयर इज लाइक a lot of sites that provide you free pictures for editing. तो मैं क्या करा करता था, I used to go to those sites, I used to download those pictures and I used to edit them. तो वहां से like मेरे को धीरे धीरे समझने लगा कि टोन्स क्या होते हैं, हाउ एम आई सपोज टू यूज दोज लाइटरूम का एप्स वगैरह हो गया, स्नैपसीड हो गया. उसके बाद में आई फिगर्ड आउट व्हाट माय काइंड ऑफ टोन वाज लाइक, मुझे कौन से टोन्स वगैरह जाना है. एंड वहां से धीरे धीरे फिर मुझे अपने वर्कफ्लो के बारे में पता चला कि हाउ माय वर्कफ्लो इज सपोज टू बी. तो वहां से हम लोगों को एक ब्रीफ आइडिया मिल जाता है. व्हेन यू ट्राई टू डू अ सर्टेन थिंग ना, आप लोगों को जब आप लोग धीरे धीरे वो चीज में ना टाइम देने लगते हो तो आपको चीजें अपने आप पता चल जाती है. तो FFAs का ऐसा था कि दे आर होस्टेड बाय टॉप कंटेंट क्रिएटर्स, ठीक है. ऑब्वियसली दे हैव अ प्राइस और समथिंग लाइक दैट. बट मैं FFAs का प्राइस वगैरह के साइड में नहीं जाता. आई जस्ट एडिट पिक्चर्स बिकॉज आई लाइक, ठीक है. आई जस्ट लव टू पुट माई टोन एनीवेयर. तो FFAs में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आप लोगों को इनकरेज इसके लिए कर रहा हूँ, इट्स बिकॉज इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ योर टोन, ठीक है. आप लोगों को एडिटिंग वगैरह में आपके जितने भी डाउट्स वगैरह है वो सारे आप लोग FFAs वगैरह में पार्टिसिपेट करोगे तो आप लोगों के निकल जाएंगे. बिकॉज यू आर सम सॉर्ट ऑफ आप लोग एडिटिंग वगैरह तो ट्राई कर ही रहे हो. एंड सिंस यू आर पोस्टिंग देम ऑन द फीड, यू आर एक्चुअली लाइक गिविंग स्पेस फॉर अदर्स टू हैव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ योर वर्क, ठीक है. लोगों को पता चल रहा है कि आप लोग फोटोज वगैरह एडिट कर रहे हो ऐसे, तो दे आर गेटिंग हुक टू योर टोन्स और नॉट. आपको पता चलेगा, फिर आपको उसमें से फिगर आउट होना चालू करोगे आप कि हाँ दिस इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ टोन दैट पीपल आर लविंग, ठीक है. दिस इज द पर्टिकुलर टाइप ऑफ टोन दैट आई एम ऑल्सो लविंग. तो FFAs से वही है यार कि आपका एडिटिंग का सेंस वगैरह भी आ जाएगा.
एंड रिगार्डलेस ऑफ प्राइज और रिकॉग्निशन, ये चीज तो मतलब पर्सनली डिपेंड करता है. मेरे को प्राइज और रिकॉग्निशन नहीं चाहिए, मतलब ऑब्वियसली मेरे को कमर्शियल वर्क में भी इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है. आई जस्ट लव क्लिकिंग पिक्चर्स एंड व्हाट आई एम हेडिंग टू इज लाइक इंस्पायर पीपल हु आर डाउन टू लाइक क्रिएट कंटेंट वगैरह हो गया. तो दैट इज वेयर आई स्टैंड. So FFS for me is just a thing to try my own skills upon. It can prove something different for you all, but for FFS it's very important because आपको तो सबसे पहले तो आपका मैंने जैसे बोला कि आपको एक एडिटिंग का सेंस वगैरह आ जाएगा. एंड it's also fun, like watching other people edit photos. आपके फोटोज वगैरह आप लोग एडिट वगैरह कर रहे हो, उनके फोटोज वगैरह, तो आप लोगों को आइडिया आता है कि यार इसके फोटोज इसने ऐसे एडिट किए, मैंने ऐसे एडिट किए, मैं कहाँ पे ये किया. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग. इट हेल्प्स यू पॉलिश योर ओन स्किल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So, 2020 has been a great year and worst year for some people. And as I like to say, it really depends upon perspective. So I want to ask you, not content-wise, but in an overall way, how has 2020 been for you? तो 2020 इनिशियली तो मेरे लिए बहुत ही लाइक ये था, मेसी था. बिकॉज जो मेरा अनबाउंड का जो आइडिया था वो वाज नॉट गेटिंग फिगर्ड आउट. आई वाज लिटरली लाइक बहुत मैसअप हो चुका था मैं. बिकॉज सबसे पहले तो यार मैं नाइव था. आई वाज लाइक मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा था कि कैसे क्या फिगर आउट करना है, व्हाट द पब्लिक वांट्स फ्रॉम अस. ठीक है, पब्लिक को क्या चाहिए होता है. तो व्हाट आई स्टार्टेड वाज लाइक आई यूज्ड टू काइंड ऑफ डाइवर्स माई सेल्फ फ्रॉम दीज थिंग्स. मैंने फिर है ना इंटायरली थोड़े दिनों के लिए वो आइडिया थोड़ा स्क्रैप ही कर दिया था. मैंने काम करना ही छोड़ दिया था उस पर. उसके बाद में मैंने फिर आई स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर लाइक सेशंस वगैरह जो लोगों के इंटरव्यूज वगैरह होते थे. I took a lot of inspiration from artists, and there was like one thing that I absolutely came to know, and I still follow to this day, was like everyone started somewhere. You started somewhere, I started somewhere, everyone started somewhere. It was very very small. It was just a small thing. I अनबाउंड का भी जो था वो सबसे पहले तो मतलब मैं जैसे आई टोल्ड कि इट वाज जस्ट अ वर्कशॉप. खारघर में वर्कशॉप लेने गया, वहां से मुझे आइडिया आते गया. तो आई स्टार्टेड वर्किंग अपॉन दिस. तो 2020 हैज बीन मोस्टली अबाउट माई सेल्फ. देयर हैव बीन लाइक अ वेरी गुड थिंग्स हैपनिंग. बैड थिंग्स में तो यही है यार कि आइडियाज वगैरह फॉर्मुलेट होके एग्जीक्यूट करने नहीं मिल रहे. उसके वजह से कैसा है कि टच वगैरह चला जाता है कभी कभी. फॉर एग्जाम्पल यू प्रिपेयर अपॉन अ पर्टिकुलर आइडिया, आप उसको दिन भर रात भर पूरा आप उस पर काम करते हो, एंड देन समथिंग हैपेंस एंड देन यू ट्राई टू कीप इट असाइड फॉर सम डेज. ओके, एंड देन व्हेन यू कम बैक टू इट, इट्स लिटरली गॉन. आप लोगों को कुछ समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट किया था क्या. समटाइम्स तो मैं ये भी भूल जाता हूँ कि अनबाउंड के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, मेरे को मतलब करना क्या है. यहाँ तक का मेरा ये हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी. सो एक ही है कि 2020 में कि लाइक आई हैव बीन एबल टू लाइक फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे पहले तो मैंने मतलब मेरे जो पैशन वगैरह था वो सारा फिगर आउट कर लिया. सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैंने ये फिगर आउट कर लिया कि भाई सबकी लाइफ सेम नहीं होती. हम लोग इंस्टाग्राम पे जो देख रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं, जो बाहर के आउटसाइड सिनेरियो जो चल रहा है वो हमारे से बहुत ज्यादा डिफरेंट है. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट एवरीवन कि आप लोगों को अगर ऐसे लग रहा होगा कि आप लोग अभी कंटेंट नहीं बना रहे हो, आप लोग अभी कंटेंट शूट नहीं कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्टिविटी जीरो है. तो लेट मी टेल यू, आपका प्रोडक्टिविटी जीरो नहीं है. हम लोग बस एक सर्कमस्टांसेस में है. वैसे हम लोग बस एक फेज में है कि वी आर नॉट गेटिंग टू लाइक गो आउट, ट्राई आवर थिंग. तो व्हाट यू कैन डू इज लाइक आप घर पे बैठो, आप घर पे जितनी भी चीजें ऑफ द ग्रिड आपको जितनी चीजें फिगर आउट करनी है आप लोग फिगर आउट कर लो. बिकॉज ऑफ द ग्रिड कंटेंट क्रिएशन में चीजें बहुत सारी होती है. मतलब अभी जैसे
Aditya is here. Aditya has like figuring out this podcast वगैरह. तो आपने anything else ऐसी शुरू नहीं किया, right? There has been a Right. lot of scripting behind this. There has been a lot of choosing the correct people that that are going to appear on this podcast, figuring out where you are going to post the videos, editing the videos, etc., etc. There is lot of work that is going on behind the scenes, guys. Please just don't mistake your work for एक सोशल मीडिया का फोटो दूसरे का जो अच्छा आ गया है और तुम्हारा गंदा आ गया है. प्लीज, मैंने ये चीजें रियलाइज करी है धीरे धीरे. अभी भी मतलब देर आर लॉट ऑफ टाइम्स आई एम फेलिंग टू रियलाइज दिस. बट प्लीज गाइस, 2020 इज अ वेरी गुड ईयर. देखो, वी आर एक्चुअली ग्रेटफुल फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. लॉकडाउन वगैरह है, आप लोगों को बहुत सारी चीजें फिगर आउट करने मिल रही हैं. प्लीज यूटिलाइज द प्रेशियस टाइम, फिगर आउट करो आपको क्या करना है क्या नहीं. जस्ट डोंट रन कि दूसरे लोग जा रहे हैं बाहर तो मैं भी जाऊंगा. बिकॉज सबसे पहले हमें अगर सरवाइव करना है यहाँ पे तो हमें हेल्थ का ध्यान रखना ही है. So please guys, stay safe and just keep figuring out. That is the thing. मेरे लिए So तो एक ही है, मेरे लिए तो 2020 has been all about figuring out and sorting things. That's it. you started off with a Nikon camera. I guess that was your first camera, right? And before that, you used to shoot on phone. So Yeah. from what has been the journey from that Okay. Ritesh who was just exploring new things to this much more experienced one? How good and bad the journey has been? Okay. So yes, I started out clicking photos with my phone. इनिशियली मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं इतना दूर आऊंगा. मुझे लिटरली सच में कुछ आइडिया नहीं था. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कंटेंट क्रिएटर्स की स्टोरीज हो गई, एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी हो जाती है. उसके बाद में एक्टर्स वगैरह जो स्टोरीज वगैरह बताते हैं उन लोगों को दे आर मेड अप. बट इतना मतलब खुद के साथ में एक्सपीरियंस करने के बाद में तो मुझे पता चल रहा है कि नॉट एवरी स्टोरी इज मेड अप. ठीक है, हर एक के लाइफ में अप्स एंड डाउन थे. मेरे लाइफ में तो मतलब कॉन्स्टेंटली अप्स एंड डाउन होते ही होते हैं. हर रोज मैं उठता हूँ तो कुछ ना कुछ एक नया प्रॉब्लम आ ही जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट फिगरिंग आउट थिंग्स. उसके बाद में व्हेन आई स्टार्टेड फोटोग्राफी विथ माय फोन, तो वहाँ पे कोई नहीं था सपोर्ट करने के लिए. बिकॉज आई वॉज इन देहरादून तो मेरा शेड्यूल वगैरह काफी टाइट रहा करता था. एंड सिंस आई यूज टू लिव इन द हॉस्टल, वहाँ से मतलब यहाँ से बॉम्बे से पेरेंट्स से एक रिस्ट्रिक्शन टाइप ऑफ था कि मतलब यार बेटा क्या कर रहा है वहाँ पे, उसे बाहर जाने दे रहे हैं तो मतलब कैसे क्या करेगा क्या नहीं. तो वहाँ पे भी मुझे ज्यादा कुछ एक्सप्लोर करने नहीं मिला था. तो उसके बाद में आई केम बैक टू मुंबई. एंड मुंबई आने के बाद में व्हाट हैपेंड वाज लाइक माय लाइफ वाज एंटायरली चेंज. द हसल बसल, जो लोकल्स का जो हसल बसल मुझे देखने मिला, द स्मॉल थिंग्स दैट पीपल मेड हैप्पी, लाइक बॉम्बे का जो स्ट्रीट मार्केट वगैरह था. आई यूज टू गो टू लाइक धारावी वगैरह. हम लोग दादर चौपाटी वगैरह मतलब वहाँ पे भी गए थे हम लोग. तो वहाँ से चीजें एक्सप्लोर करने का शौक हुआ. कैमरा वगैरह आने के बाद में तो कुछ चेंज नहीं हुआ. बस इतना ही चेंज हुआ कि भाई मेरे पास में कैमरा आ गया, बस और कुछ नहीं चेंज हुआ. टैलेंट वगैरह, पर्सपेक्टिव वगैरह जो भी है वो तो सब लाइक इट्स ऑल इन योर हेड. ज्यादा कुछ ये नहीं है. एंड यही है कि बस अभी चीजें फिगर आउट करते जाना है जो भी है. मतलब अभी आगे आगे बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं. जैसे मैं अभी इंजीनियरिंग वगैरह भी है, इंजीनियरिंग वगैरह का भी मेरा 1 साल बचा हुआ है. तो सबसे पहले तो वो एक पास आउट करना है. एंड जर्नीज वगैरह का आई एम नॉट दैट मच लाइक मेरे इतने जर्नीज वगैरह काफी कुछ स्पेशल वगैरह तो नहीं थी. इट जस्ट वेंट आउट एज अ नॉर्मल फोटोग्राफर वगैरह, एवरीडे फोटोग्राफर. क्योंकि मैंने सारी चीजें ऐसे मिक्स बैग जैसी की हुई है. ना मैं फुल टाइम फोटोग्राफर था, ना मैं लाइक ऐसा बंदा था जो लिटरली स्किल्स वगैरह छोड़ दूंगा. तो फोटोग्राफी गॉट मी वेरी हुक्ड एंड आई एम थैंकफुल फॉर फोटोग्राफी बिकॉज इट वाइडेंड माई पर्सपेक्टिव. बहुत ज्यादा ही इट हेल्प मी चेंज माई सेल्फ. इट completely change the way I looked into certain things. पहले मैं सोचता था कि लाइफ इज ऑल अबाउट वर्किंग वगैरह. बट उसके बाद में मुझे पता चला कि लाइफ इज ऑल्सो अबाउट कीपिंग आवरसेल्फ हैप्पी.
I used to I remember the days when I was very very feeling very low. मुझे literally like I used to break down and cry. So that was very very tragic for me. I still am there are some points जब भी मैं low feel करता हूँ, but यार ट्रस्ट करो यार जर्नी को, बस वही है. आई एम ऑल्सो लर्निंग इट. थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है जो भी है वो, क्या ही बताएं अभी. So I always ask Most this question important at thing the is getting along, trusting. Yeah. I always ask this question at the end about appreciating content on social media. For this final episode, I want to reframe that question in a way, and I want you to say a few words on why appreciating your content is very important in the long run, and how this small thing can bring about a lot of great changes. Okay. So this is very very fundamental thing. मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट करी थी back in 2018 or something like that, so I started with my phone. बराबर. So what happened was जब मैं फोटोज वगैरह क्लिक करता था ना, तो people were because मेरे पास में ना एक Redmi 4 था, that is like a 10,000 rupees का phone. So when I started clicking pictures ना, people actually started to appreciate me वगैरह. तो सबसे पहले तो मुझे भी बिलीव नहीं होता था कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग. बस इतना पता चलता था कि हाँ आई वाज क्लिकिंग पिक्चर्स, बट ये आइडिया नहीं था कि आई एम डूइंग समथिंग स्पेक्टेकुलर. थोड़ा एक एज से मैं लोगों के आगे हूँ व्हेन इट कम्स टू एटलीस्ट जो कलीग्स थे वो जो फोटोज वगैरह क्लिक नहीं करते थे. तो वहां से आई स्टार्टेड बिल्डिंग अप कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि हाँ आई कैन क्लिक समथिंग. एंड मेरे पास में अभी तो कैमरा वगैरह नहीं है. And my friends used to always support me. There are a lot of amazing people I've met. I've met you. I've met Akash वगैरह. They're just amazing guys. Vishwatej is a very amazing guy. Kanishka. They all have been here at anything else. They're absolutely amazing bunch of people. Kanishka supported me a lot. She was also one of the first people who I started talking to, and admiring works of each other. Then ये सारी चीजें होते गई. एंड वहां पे मैंने सोचना शुरू किया कि लोग तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट एम आई लैकिंग समहाउ कि मैं अपना खुद का कंटेंट अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूँ. तो वो जो पॉइंट था ना, तो ये पॉइंट को जब मैंने ओवरकम किया था, तब थिंग्स एक्चुअली स्टार्टेड गेटिंग इन लाइन विथ फॉर मी. आई एम सेइंग कि जब मैंने खुद का कंटेंट वगैरह अप्रिशिएट करना शुरू किया, तो वहां पे सारी चीजें मेरे लिए जितनी भी चीजें थी वो फिगर आउट हो गई कि हाँ तेरे को तेरे कंटेंट पे ट्रस्ट है, यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट. हाँ ठीक है, तू कमर्शियल वर्क में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन इंस्पायर अ लॉट ऑफ अदर पीपल हु आर बिगिनिंग देयर थिंग. ठीक है. तो मैं वो पर्सपेक्टिव से सोचने लगा. अभी फोटोग्राफी मेरे लिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए फोटोग्राफी ना कमर्शियल वर्क अभी नहीं है बिल्कुल भी. मेरे को ना, इवन इफ आई इवेंचुअली गलती से अगर इफ आई ब्लो अप, आई एम नॉट गोइंग इनटू कमर्शियल वर्क. मेरा ऐसे ही साइड बाय जो भी होगा ट्यूटोरियल्स वगैरह हो गया, वर्कशॉप्स वगैरह लेना हो गया, मेरा फोकस यही होगा टू इंस्पायर लॉट ऑफ पीपल. कमर्शियल वर्क वगैरह का मेरा भी कुछ इतना मन नहीं है. तो ऐसे यही होते रहता है. अगर आप खुद का कंटेंट वगैरह बिलीव कर रहे हो ना, आप जो कंटेंट बना रहे हो, आप अगर उसमें बिलीव कर सकते हो, तो देर इज ऑलवेज अदर साइड ऑफ थिंग्स दैट यू फॉल इनटू. आप लोगों को पता चलता है धीरे धीरे कि हाँ मैं अगर ये एस्पेक्ट में नहीं काम कर पा रहा हूँ तो नहीं, मेरे पास में हजारों अलग एस्पेक्ट्स है जो आई कैन वर्क अपॉन. आई कैन ब्लेंड डिफरेंट एस्पेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अनबाउंड का अभी मेरा जो प्लान है, माई प्लान इन अनबाउंड इज फ्यूजिंग फोटोग्राफी एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनटू बोथ. ये photography वगैरह for inspiring people, and entrepreneurship is we are starting it as something like वर्कशॉप्स वगैरह का हो गया. तो वी नीड टू गेट इनटू स्कूल्स वगैरह, तो उसके लिए भी ऑब्वियसली हम लोगों को फिगर आउट करना है. वी हैव टू प्रेजेंट आवरसेल्व्स वगैरह. तो दैट इज द थिंग.
मेरे को कमर्शियल वर्क वगैरह में तो ज्यादा अभी इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बचा। अभी के लिए मेरे इसमें मतलब बस माय जॉब इज लाइक मेरा पैशन मेरे को समझ में आ गया। आई हैव टू इंस्पायर लाइक अ पीपल, लाइक लॉट ऑफ पीपल। सो दिस इज इट मैन। आई जस्ट लाइक मैं ज्यादा तो बोल नहीं पाता हूँ somehow, but I would love to inspire a lot of people. That's it. That's the thing. So guys, this was a whole bunch of advice which I really wanted to. Hitesh, episode was supposed to come second last, and Shayan's episode is coming after. It was going to be the final episode, but college and assignments and exams mess up your schedule a lot. So that's why. But I'm so happy that I almost thought what? man, I almost thought that I was gonna I almost thought that I was gonna scrape off from anything else, man. You know that? No. So yeah, there were a lot of plans when I started on anything else. There were a lot of plans which I thought of that I would be able to execute, but I was not able to do that. But again, it turned out to be a very fun season for me. Almost 8 episodes, one bonus from the episode 4. So that brings me to 8 episodes this season. And yeah, it's coming to an end. And it's quite fun. And see, you got one more amazing guest from me, Hitesh Patel. Guys, I would like to add one thing. Um, the thing that Aditya is doing right now is amazing because not because like kuch podcast वगैरह or something like that. I am more inclined towards his idea of bringing new faces. Okay, not a lot of people are doing that right now. ठीक है, पॉडकास्ट वगैरह तो यार सब लोग होस्ट कर रहे हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट। बट आप लोग पॉडकास्ट में क्या कर रहे हो? ठीक है, आप लोग पॉडकास्ट में क्या कर रहे हो, आप लोग कौन सी चीजें हाईलाइट कर रहे हो? बहुत सारे लोग फन कॉमेडी पॉडकास्ट वगैरह हो गए, तो इट्स देयर थिंग, आई एम कम्प्लीटली फाइन विद दैट। बट Aditya जो कर रहा है, he is like constantly evolving and helping others, like new faces who are constantly upping their game. They constantly they're achieving new things. And Aditya, what he is trying to do is like he is absolutely trying to elevate those people. This is the thing that I liked about anything else. I wanted to appreciate Aditya for like what he was like doing. Initially, he started off with his YouTube channel that went very good. Now he is onto his podcast, and that has like absolutely blown up. That is a very good thing. Now, man, I just love what you're doing right now. It will Guys, blow up, man. देखो It will absolutely guys, blow up. अरे वो इतना तारीफ किया इसने मेरा, अब तुम लोग अगर इसको जाके फॉलो नहीं किया ना, सबको 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 जाके फॉलो करना है इसको, ठीक है, सबको जाके करना है। So for the final phase, is there something you want to say to the audience listening to this? Okay, something अभी तो देखो यार, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ कि आई एम नॉट दैट मच ऑफ अ वेरी फ्लुएंट टॉकर और समथिंग लाइक दैट। बहुत सारी चीजें मेरे को भी फिगर आउट वगैरह करनी है अभी भी। बट मतलब जितनी चीजें मैंने अभी तक फिगर आउट करी है, तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि गाइस, आपका टाइम खत्म नहीं हुआ है। आप लोगों को इवॉल्व होने के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। आप लोगों का एक एस्पेक्ट अगर आपका गलत जा रहा है, तो प्लीज डोंट टेक इट अपॉन योरसेल्फ इन अ वेरी बिग वे। एंड जो हमारे इधर इंडिया में जो रिसेंट केसेस वगैरह जो हो रही है, लाइक डिप्रेशन वगैरह के हो गए, प्लीज गाइज, आई सजेस्ट यू ऑल टू टॉक टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, दे आर द एब्सोल्यूट बेस्ट पीपल दैट यू कैन एवर फाइंड। ठीक है, talk to your parents if you are comfortable, and just don't let your like mind go into a state of low level, and आप लोग अपने आर्ट को अंडर एस्टिमेट मत करो कभी, बिकॉज दिस इज द फंडामेंटल। कंटेंट क्रिएशन का फंडामेंटल यही है। एंड अगर आपने फंडामेंटल्स ही नहीं समझा, तो आई डोंट थिंक सो कि बाकी चीजें आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएंगी। एंड दैट्स इट, बी कंसिस्टेंट, एंड यस,
पोर्टफोलियो प्लीज, पोर्टफोलियो मेंटेन करो यार, मेंटेन करो. बहुत लेट समझा मैंने, बहुत सारी चीजें मैंने भी लेट समझी है, लेकिन बहुत सारी चीजें लेट समझ के अभी जो आगे आने वाली है चीजें, that that is going to be exciting for me and as well as you guys also, for you guys also. That's it. That has been, Keep creating guys. and keep inspiring. That has been, guys. This was the final episode of Anything Else for this season. And yes, I'll be back with more creators in the future. Next year, of course. ये तो साल खत्म ही हो गया. This episode is coming on Christmas Eve, and I might put out the audio on Spot. I might put out the Spotify version a few hours early in the morning. I don't know. सब लोग जाके हितेश को follow किया, and I'll put out the podcast सुबह 10 बजे rather than 5. Okay, good. So this has been a very fun day. You got a lot of insights and experience from Hitesh. I hope you have learned a thing or two. You got my message, which I put out at the start of the video. Thank you so much for supporting the podcast. Make sure you follow Hitesh and all the other creators who were on this podcast, starting from Vishwatej, Sayan, Sarvesh, Kanishka, Advait, Atik, Akash, and Sayan in the last episode, even Hitesh. Make sure you follow everyone and each of them. And I'll see you guys very soon. Until then, peace and love.